مسیح کی سب تشریف رکھیں. بلکہ اس کے سامنے آ جائیں. کچھ آج کافی دیر ہو گئی آنے میں، تو جب تیاری ہوتی ہے صبح کی، ہم تو کافی صبح سے اٹھتے، ہماری روٹین ہے کہ اگر چھٹی ہو بھی تاہم بھی کوئی روٹین ہے، اگر نہ بھی چھٹی تو ہماری کوئی روٹین ہے. ہم اپنے ٹائم سے ہی اٹھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے آج تک ہمیں وہی روٹین دی جو پہلے سے. ہاللیلویا. کچھ کام تھے کہ ہم نے اوپر والا جو کلیل ہے وہ لے کے آئے ہیں، جو اسٹیج کا کلیل ہے وہ صاف لے کر آئے ہیں. اس کے بعد پھر لگائیں گے سارے کلیل کو. تو ایسے میں تھوڑے تھوڑے کام ہوتے ہیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے آج ہم خدا کے کلام حق میں سے لعنت اور برکت کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں. کس کے بارے میں؟ ہاں جی، لعنت اور برکت کے بارے میں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ برکت بھی ریسیو کرتا ہے اور لعنت کو بھی ریسیو کرتا ہے. اور یہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، چاہے وہ برکت کو لے لے چاہے وہ لعنت کو لے لے. یہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ انسان کے ہاتھ کے اندر ہے. ہم کئی باتوں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہم لعنت لے لیتے ہیں. تو آئیے ہم خدا کے کلام حق میں سے پڑھیں گے، بلکہ اس پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. ایک طرف سے آپ سب کو مسیح میں سلام. ابھی جو کورس گایا گیا ہے، ان کے لفاظ، ان کی گہرائی کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ کس کس کو سمجھ آتی ہے اس کی؟ جب یہ گایا جاتا ہے کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ کبھی کسی نے توجہ کی ہو یا کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو؟ اس نے کہا کہ مکتی کا لہو کہاں سے بہہ گیا؟ تن سے بہہ گیا، ہاتھوں سے بہہ گیا، سینے سے بہہ گیا، پاؤں سے بہہ گیا. یہ لہو مکتی کا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے مکتی کا ہے، لیکن جس کے تن سے بہا ہے اس کے لیے مکتی نہیں ہے. پھر ایک ورڈ بولا گیا، لوگوں کا یہ پیار کیا بنا؟ تلوار بن گیا. اب وہ محبت ہے، پیار ہے، تلوار کس طرح بن سکتا ہے؟ کس طرح تلوار بنا؟ آپ تو گا رہے ہیں نا، میں باقیوں سے پوچھ رہی ہوں کہ تلوار کس طرح بنا؟ کہ جب ہم ان لفظوں کو سمجھتے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہے جب ہم ان لفظوں پر غور کرتے ہیں. کیا وہ تلوار، وہ پیار آج ہماری زندگی میں قائم ہے؟ وہ جو تلوار بن گیا، اس کا پیار جو ہے وہ تلوار بن گیا. وہ تلوار کیسے بنا ہے؟ اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ تلوار جو بن گیا خداوند کا پیار ہے، اس کی محبت ہے، اس کی چکانگی ہے جو ہم تک پہنچی ہے. تو کیا یہ ہم اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلوار ہے؟ وہ تلوار آج بھی قائم ہے، وہ تلوار ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی وہی تلوار ہے. خون آج بھی وہی بہتا ہے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. اگر تب ان لوگوں کے ساتھ اتنا پیار دکھایا گیا یسوع مسیح نے کیا، مفت کی روٹیاں دی، ساتھ رہ کر دکھوں میں مصیبتوں میں گزرا، ان کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، تو کیا آج ان کا پیار ختم ہو چکا ہے؟ کیا آج ان کا پیار ختم ہو گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
आज भी खुदा उतना ही प्यार करता है, आज भी दुनिया उतना ही प्यार करता है, लेकिन हमारी जो तलवारें हैं वही की वही अटकी हुई है। हम अभी भी उसको उसी तलवार से छेदते हैं, उसी तलवार से उसको जख्मी करते हैं, उसी कोड़ों से अभी तक भी हम उसको मारते हैं। अगर उन लोगों के साथ यीशु मसीह ने रहकर प्यार किया, उनका प्यार उनकी तलवार बना, तो आज वही प्यार हमारे दरमियान भी आया और हम भी वही तलवार को उठाते हैं। कभी आंदा जब ये दोबारा गाया जाएगा, उसके एक एक बोल को जब आप अपने जहन में लेंगे तो उसकी तरतीब आपके जहन में बैठती जाएगी कि वो किस तरह उसका प्यार जो है मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के लिए तलवार बना। अब वही तलवार जो है यीशु मसीह की गर्दन पर अभी भी अटकी हुई है, लटकी हुई है मेरे और आपके सबब से। जब हम उसकी बात को नहीं मानते, उसके हुक्म को नहीं मानते और उसकी कदर नहीं करते, इसी तरह उन लोगों ने भी उनको बेकदर किया और उनकी बेकदरी की। और यीशु मसीह उन लोगों का प्यार जो यीशु मसीह की तलवार बन गया। तो आए हम कलाम हक की तरफ चलेंगे। आज हम देखेंगे दूसरी सलातीन निकालिएगा, दूसरी सलातीन उसका 5वां बाप निकालिएगा, सब निकालने। और उसकी पहली है हम उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े, मैं पढ़ूंगी। दूसरा सलातीन 5वां पहली आयत। उसकी पहली है नमान कोड़ी को शफा मिलती है। ये आज का हमारा टॉपिक है कि कोड़ से शफा पाना, बीमारियों से शफा पाना और दुखों से रिहाई पाना, ये आज हमारा टॉपिक है। मैं पढ़ लेती हूँ। कलाम हक में यूं लिखा है, और शाह राम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक मजूर मुकरम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सुरमा भी था लेकिन कोड़ी था। दूसरी, और रामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। आमीन। बड़ा खूबसूरत पहले भी बल्कीस ने बताया गीत के बारे में, और अब खुदाम के कलाम हक में से बड़ा खूबसूरत पढ़ा गया है एक बच्ची के बारे में, छोटी बच्ची के बारे में। जब उसे असीर कर वहाँ लाया गया, अब जब असीर करके अगर किसी को कैदी करके लाया जाए तो क्या वो आज़ादी के साथ रह सकता है? वो तो कभी नहीं आज़ादी के साथ रहेगा। ये जो नमान है ये बड़ा जंगजू आदमी है और खुदा ने इसे बड़ी बरकत दी थी, बड़ा दलेर था। और जब ये जंग पर जाता है और जंग जीत कर आता है तो एक बच्ची को साथ असीर करके लाता है, और जब वो अपने घर में लेकर आता है तो वो वहां रहने लगती है। तो अपनी जो उसकी बीवी है उसके बड़े ताबिया है, उससे वो प्यार भी करती है, उसका हुक्म भी मानती है, और वो उसी घर में रहकर अपनी मालिक की क्या करती है? खिदमत करती है। आइए हम आगे तीसरी आयत को भी पढ़ेंगे कि उस घर के अंदर रहकर वो क्या करती है। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा दे देता। अब उस घर के अंदर रहती है, छोटी बच्ची है, और वो कहती है अपनी बीबी से कि अगर काश ये मेरे आका के पास अगर होता तो क्या पाता? शिफा पा जाता।
कितनी बड़ी बात है। वहां के किस तरह है, असीरी के अंदर है, कैदी बनी हुई है, उसे कैद करके लेके आया गया है। लेकिन वो कह रही है कि अगर ये मेरे आका के पास होता तो वहां क्या पा जाता, शिफा पाता। कितनी बड़ी बात है, कितनी दलेरी है इस बच्ची के अंदर, और उससे कितनी उसके अंदर ईमान है। वो बड़े ईमान के साथ कह रही है कि अगर काश ये उस नबी के पास होता तो आज क्या पाता, शिफा पाता। अब जो शख्स है, नमान है, इसके कौन है? अगर हमारे घर के अंदर भी उस शख्स को ऐसी बीमारी हो तो क्या उससे सारे मोहब्बत करेंगे? उससे तो मोहब्बत नहीं करेंगे। ये ऐसी बीमारी है, इसे सूद की बीमारी भी कहा जाता है। इससे बहुत सारे लोग डरते हैं, अब इसके नजदीक नहीं जाते। बहुत सारे लोग हैं कि इसे अपने नजदीक नहीं आने देते, लेकिन ये घर के अंदर है। अब इससे अब जो रहने वाले हैं, हो सकते बहुत सारे लोग इससे डरते भी हों, परहेज भी करते होंगे, इसके पास जाने से डरते होंगे। वहां कुछ लोग ऐसे होंगे जो जाना पसंद नहीं भी करते होंगे, वो पीछे रहते होंगे, इसे खाने देने से वो डरते होंगे, इसे पानी पिलाने से डरते होंगे। इससे हो सकता है वो दिल के अंदर अपने इसके लिए नफरत भी हो। इस बीमारी से हर जो शख्स है वो डरता है, इसके पास जाने से लोग डरते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इसे बड़ी ब्लेसिंग दी है, बड़ा जोरावर है और जंग के अंदर जीत के आया है। लेकिन इसे क्या, कौन सी मर्ज है? कोढ़ की मर्ज है। और जो कोढ़ की मर्ज ऐसी मर्ज है कि जिससे हर शख्स डरता है, नफरत करता है और उससे उसके पास जाना पसंद नहीं करता। और जो नमान को है, इससे कोढ़ का मर्ज है और वो देखती है कि इससे हर जो शख्स है वो पीछे रहता है, डरता है। और उसकी बीवी को वो कहती है कि अगर काश ये मेरे आका के पास, नबी के पास होता तो ये क्या पा जाता, शिफा पा जाता। हालेलुया। कितना बड़ा ईमान इस बेटी का है ये छोटी है लेकिन इसका क्या है, ईमान है कि अगर काश ये मेरे आका के पास होता तो आज ये बिल्कुल क्या हो जाता, ठीक हो जाता। कभी हमने किसी को कहा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अगर कोई बीमार है तो भैना कहती है छट तेन गिरजे च रमान नहीं आना, वो फलाने बाबे को रमाना है। इथे कुछ नहीं है, इथे तेन कभी शिफा नहीं मिलनी। आप फलाना पीर फलानी जगह पे आप उथे जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे बड़ा यीशु का नाम जपते हैं, वो कहते हैं इनके हर वक्त घर च टीवी लाई रखने हैं, यीशु साढ़े घर लगा रहता है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि एक बहन रॉबर्ट के अंदर वो कहती है कि हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी प्रे करते हैं। तो एक वक्त आया कि उन्होंने बताया लोगों ने कि ये फलाने बुजुर्ग के पास गए हुए थे। तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग इबादत को, ऐसे लोग जो कहते कि हम तो खुदा से हर वक्त दुआ करते हैं, लेकिन अब कहाँ है उस बुजुर्ग के पास, अब कहाँ मान है। हम ईमान कहते हैं लेकिन इसका मतलब ईमान नहीं है, सिर्फ हमने एक ये लफ्ज बनाया है ईमान, लेकिन हमारा ईमान नहीं है। ये जो बच्ची है ये सीरी के अंदर है और कितना बड़ा इसका मान है कि ये कहते कि काश अगर तू मेरे आका के पास होता तो क्या हो जाता, ठीक हो जाता। कितना उसका ईमान है, उसका कितना यकीन है। हमारे पास उधर एक डॉक्टर है,
अगर कोई मुस्लिम भी आता है ना बहन भाई, अगर वो देखता कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि वो फलानी जगह पर रहते हैं, अगर आप वहां जाएंगे उनसे दुआ कराएंगे कि आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हालेलुया। इसका मतलब है कि जो गैर कौम के लोग हैं वो यीशु मसीह पर क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। कई बार होता है कि हम इबादत में बैठे होते हैं, अगर कोई फलाना पैगाम दे तो हम यीशु को छोड़कर फलाने के पैगाम को सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम किसके झुके हुए हैं, अपने खुदावन यीशु के आगे। हमारा यीशु हमारे दरमियान है, हम उसके हजूर झुके हैं, लेकिन हम उसको पसंद कम करते हैं। अगर बुलाने वाला आ जाता तो हम उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इन चीजों को देख लें जब बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम, तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बरकत देता है। आइए हम आगे भी खुदा उनके कलाम हक में से पढ़ेंगे, 8 आयत को पढ़ेंगे। चलो 8वीं आयत। जब मरते खुदा लिशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और लिशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। अब यहाँ जो मैसेज दिया गया है, भेजा गया है शाह इस्राएल के पास, और उसने समझा कि ये मुझे नबी कहता है, तो जब वहां उसे पैगाम दिया जाता है तो वो समझता कि उसने कहा कि मैं नबी हूं, तो वो क्या करता है, अपने कपड़े फाड़ देता है। उसने कहा कि मैं नबी हूं। अब वो उसके अंदर ये बात है तो मैं तो नबी नहीं हूं, लेकिन वो शाह इस्राएल के पास जो मैसेज आया है वो यही है कि मुझे अच्छा कहा, मैं ठीक होना चाहता हूँ। 8वीं आयत 9वीं आयत को भी पढ़ते हैं, 10वीं आयत। और लिशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा और जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तो पाक साफ होगा। हाँ जी, ये जब वहाँ जाता है तो वहाँ लिशा के पास जब वो जाता है तो लिशा उसे कहता है कि तू दरियाई यरदन में जाकर क्या कर, 7 गोते लगा और तू क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। अब इसका ख्याल है कि जो लिशा नबी जो है वो मेरे राह के खड़ा होगा, इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। अब उसके अंदर ये बात है, अब उसको अंदर ये बात पसंद नहीं आई कि उसने तो मुझे घर में बैठकर ये पैगाम दे दिया है कि आप जाएं और जाकर क्या करें, दरियाई यरदन में क्या करें, 7 गोते लगाएं और आपका कोट क्या हो जाएगा, पाक और आप साफ हो जाएंगे। अब इसके अंदर वो बड़ा नाराज है, वो तो चाहता है कि वो मेरा इस्तकबाल करेगा, वो मुझे जानेगा, लेकिन इसने जानने से पहले ही अपने घर के अंदर ये मैसेज भेज दिया है कि ये दरियाई यरदन में जाकर क्या करे, 7 गोते लगाए। अब ये जो बंदा है कि उस बच्चे के ईमान को देखकर लिशा के पास आया है, और आकर जब उसके पास आया तो लिशा ने भी ये कह दिया कि भाजी जो जाके अगर हमारे पास कोई आदमी आ जाए ना तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जी तू जाकर रात में कह रही है तू जाकर दरिया में चले जाओ तो 7 गोते लगाओ तो तुझे ठीक हो जाए। क्यों अच्छा जानेगा, वो तो कभी उन्हें कहना ये ना तो मेरे गल ही नहीं की थी, ये तो पसंद ही नहीं करते कि असी इन्होंने मुलाकात करें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा कि जा जाकर क्या कर, दरिया यरदन में
7 गोते लगा। अगली याद को पढ़ लो, याद नहीं आया। पर नमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दवा करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। अब उसका मान है कि हो सकता है कि आकर, कई बार होता है कि हम ज्यादा पसंद करते हैं कि मेरे सर पर हाथ रखा जाए तो मैं फिर ही ठीक होऊंगा। अब उसका भी यही देन है कि वो आकर मेरे इधर उधर क्या करेगा, हाथ लगाएगा, हाथ फेरेगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब उस पर वो नाराज है कि इसने तो घर के अंदर ही कह दिया कि जा जाकर क्या कर, 7 गोते लगाओ, तू क्या हो जाएगा, पाक। और अब ये नाराज हो गया और जब उसके सिपाहियों ने उससे कहा कि अगर तुझे और बड़ा कोई काम कहता तो तू ना करता। उसने कहा कि मेरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत दरिया हैं, तो अगर ये मुझे वहां कहता तो मैं वहां ही गोते लगा लेता। लेकिन उसने, जो उसके दूसरे साथी हैं, सिपाही है, उन्होंने कहा कि तुझे और कुछ ने हुक्म नहीं दिया, तू करके तो देख। जब वो दरियाई यरदन के अंदर गोते लगाता है, पहला दूसरा लगाता तो वो कहते कि अभी और रहते हैं, और जब वो 7वां गोता लगाता तो उसका जिस्म क्या हो जाता है, पाक और साफ हो जाता है। तो किस तरह हो जाता है, छोटे बच्चे की तरह। हालेलुया। उसका जो कोढ़ है वो जाता रहता है। अब उसने किसके, अगर शिफा पाई तो किसके कहने से पाई है, उस बेटी के ईमान से जो है उसने क्या ली है, पाक और साफ हो गया। उसके कहने से उसने आकर लीशा नबी के पास अपने आप को अच्छा पाया। कई बार होता है कि हम एक दूसरे को जब कहते हैं कि आप भाई इस बात को छोड़ दें कि हमने अब बुजुर्गों के पास नहीं जाना, हमने कहाँ जाना है, अपने खुदा के पास जाना है। अगर मैं, जिंदगी मेरी है या नहीं है, लेकिन मैंने किसी के पास नहीं जाना, बल्कि मैंने कहाँ जाना है, खुदावंद के पास, अपने खुदावंद के पास जाना है। अगर वो मुझे जिंदगी देता है या मौत देता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने खुदावंद यीशु से शिफा लेनी। अब इसने उस बेटी के ईमान को देखा और इसने आकर वो बीमारी जो बड़े बड़े हो सकते हैं कि वो हकीमों के पास गया हो, जादूगरों के पास गया हो, बड़े बड़े तबीबों के पास गया हो, लेकिन वो कहीं से उसे ठीक ना हो, वो कहां से अच्छा नहीं हुआ। बल्कि जब उसने उस बेटी की, उसके ईमान को देखा तो वो लीशा के पास जब आया तो वो आकर वहां से क्या हो गया, अच्छा हो गया। फिर उसने कहा कि तुम्हारा खुदा क्या है, बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम अपने खुदावंद यीशु के लिए जोरदार क्लैपिंग करें कि मेरा और आपका खुदा जो है वो बहुत बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और उसने क्या पाई है, बरकत पाई है। और क्या हुआ कि जब उसके पास रुपया पैसा वो लेकर आता है ताकि मैं जो कुछ सोना चांदी है वो मैं लीशा को दूंगा। अब क्या हुआ है कि उसने कहा कि ये सब कुछ मैं नहीं ले सकता, तो उसने क्या किया, वापस कर दिया। अब उसका जो शागिर्द है उसने ये चीज को देखा कि मैं तो ये तो सब कुछ मेरे उस्ताद ने वापस कर दिया। अब उसने क्या किया, उसके पास जाता है और जाकर वो कहता है कि उस्ताद को इन चीजों की क्या है, जरूरत है। तो वो कहता है जी मैं तो भाजी पहले लेके आया हैं सारा कुछ, लेकिन अगर आपको जरूरत है क्या करें, ये सब कुछ ले लें। तो वो सारा कुछ ले लेता है और क्या करता है, वो सारी जो चीजें लेकर जाकर अच्छी जगह पर लगा देता है और फिर अपने उस्ताद के पास आता है और उसका उस्ताद उसे आप बताता है
चले हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें आया, नमान ने कहा खुशी से 2 कतार ले, और वो उस से बचत हुआ और उसने 2 कतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर दिलाया, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले, और उसने टिके पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया, और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। लिशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खातम तो कहीं नहीं गिरा था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। आज वो आप क्या करता है, वो अपने साथ से आके क्या करता है, झूठ बोलता है। और जो उसका साथ क्या है, वो कहता है कि क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? अब अगर हम देखते हैं, जो लीशा है उसने अपने साथ की खिदमत की है, तो उसने अपने साथ से क्या ली है, बरकत ली है। अब जो लीशा का शागिर्द जो जहाजी है, इसने रहकर अपने साथ के साथ इस तरह का काम किया, तो उसका साथ कहता है जो चीजों से उसने मना किया है वही चीजें ली हैं, और उसका साथ कहता है कि क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? उसने कहा कि अब नमान का कोड तुझ पर और तेरी नस्ल पर सदा लगा रहेगा। उसने क्या पाई है, लानत पा ली, कोड पा लिया। अब लीशा ने क्या अपने साथ से लिया था, बरकत को लिया। अब ये जो शागिर्द है, जहाजी जो है, उसने अपने साथ से क्या ले लिया, लानत को ले लिया। हम कई बार होता है कि हम ऐसे कामों में आकर जो काम करते हैं, हम बरकत नहीं लेते बल्कि क्या ले लेते हैं, लानत को हासिल कर देते हैं। इसने भी ऐसा काम किया जो खुदा के खिलाफ है, जो उसके साथ के खिलाफ है, तो वो खुदा की निगाह के अंदर बुरा काम था। लेकिन जब उसने ऐसा काम किया तो उसने कहा कि यह वो कोड जो है वो तुझ पर और हमेशा तेरी नस्ल पर ठहरा रहेगा। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अगर बरकत पाना चाहते हैं, तो मैं और आप अपने अच्छे कामों की वजह से हम खुदा से बरकत को ले सकते हैं। अगर हमारे काम ऐसे नहीं है, तो फिर मेरे और आपकी जिंदगी में क्या हो सकती है, लानत तो है ये नहीं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, खुदा को हुक्म मानेंगे, खुदा के कहने पर चलेंगे, तो फिर मुझ और आप पर हमेशा बरकत ठहरी रहेगी। आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हमने बरकत लेनी है तो हमने क्या करने की जरूरत है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आइए दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, जो आज हमने तेरे कलाम में से बरकत और लानत के ताल्लुक से सुना, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। और खुदा पाक अपने लोगों को ब्लेस कर, और खुदावंद तेरा कलाम हर एक ज़हन और दिल पर नक्श हो, ताकि हम बरकत और लानत को जाने। आए पाक खुदा तुझसे बरकत ले सके। आए खुदा पाक तू हम सबको ब्लेस कर, और खुदा इस कलाम की इवज़ हम और बरकत पर बरकत पा सके, यीशु मसीह के नाम में।